میں نے لکھا کہ گتسمنی ملال کی جگہ ہے، گتسمنی ملال کی جگہ ہے، اور کوہ کلوری کمال کی جگہ ہے، کوہ کلوری کمال کی جگہ ہے، اور قبر سے جی اٹھنا جلال کی جگہ ہے، قبر سے جی اٹھنا جلال کی جگہ ہے، اور باغ گتسمنی امتحان کی جگہ ہے، باغ گتسمنی امتحان کی جگہ ہے، اور کوہ کلوری قربان کی جگہ ہے، کوہ کلوری قربان کی جگہ ہے، اور قبر سے جی اٹھنا پہچان کی جگہ ہے، قبر سے جی اٹھنا پہچان کی جگہ ہے، اور پھر باغ گتسمنی گواہ یہ جو ہے نا ہمارے باغ گتسمنی یہ آگاہی کی جگہ ہے، باغ گتسمنی آگاہی کی جگہ ہے، ادھر جو ہوش آیا کسی اور جگہ نہیں آیا، باغ گتسمنی آگاہی کی جگہ ہے، اور کلوری بادشاہی کی جگہ ہے، جیسا بادشاہ ادھر ہے اور کہیں آج تک لکھا گیا ہے بادشاہ ادھر ہی، کوہ کلوری بادشاہی کی جگہ ہے، اور قبر سے جی اٹھنا گواہی کی جگہ ہے، قبر سے جی اٹھنا گواہی کی جگہ ہے، اور آخری بات کیے دیتا ہوں، باغ گتسمنی دعا کی جگہ ہے، باغ گتسمنی دعا کی جگہ ہے، اور کوہ کلوری وفا کی جگہ ہے، کوہ کلوری وفا کی جگہ ہے، اور قبر سے جی اٹھنا خدا کی جگہ ہے، قبر سے جی اٹھنا خدا کی جگہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ تینوں بتایا آپ کو تاکہ یہ ذرا ترتیب رہے کہ یہ جو ہمارے ہیں نا گتسمنی کلوری، اور آپ کو پتہ ہے یہ شام وہ شام، اور آپ جانتے ہیں، اور یہ کلوری گتسمنی بھی ایک شام ہے، کلوری بھی ایک شام ہے، اور آگے پھر ایک آرام ہے، اور اس کے بعد قبر ہے، اور قبر کے بعد فجر ہے، قبر کے بعد فجر ہے، اور وہ فجر ہی ہے جس کو آج تک منا رہے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ جی اٹھنے کی فجر۔ اس لیے یہ جو شام ہے گتسمنی کی، یہ جو شام ہے کلوری کی، یہ دونوں شامیں ہمیں تیار کرتی ہیں کہ ادھر تک پہنچ جائیں۔ آخر منزل تو آپ کو پتہ ہے وہ ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری منزل ہے وہ جی اٹھنا ہے، اور اگر جی اٹھنا نہیں ہے تو پھر باقی شامیں جو شامیں رہ جاتی ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ان کے معنی تب ہوتے ہیں جب آگے جی اٹھنا ہے۔ اس لیے یہ دیکھیے ان کو الگ نہیں کر سکتے، ان کو الگ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے خداوند نے آپ کو پتہ ہے جب بھی بات کی ہے نا اپنی، تو 3 دفعہ تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمیں ملتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کیا کہ بھائی ابن انسان دکھ سہے گا۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ابن انسان دکھ سہے گا، غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے پکڑوائیں گے، اس کو کوڑے ماریں گے، قتل کروائیں گے، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ والا جو تینوں ہیں یہ بار بار کہتے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ اپنی جب بھی یہ پیشن کوئی آپ سنتے ہیں نا کہ ابن انسان دکھ اٹھائے گا، وہ سارا اکٹھے رکھتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہاں ایک دن ماریا جائے گا، دوسرے دن پھر، یہ دنوں کو نہیں گنتے، وہ کہتے ہیں ابن انسان کو حوالے کیا جائے گا، پکڑوایا جائے گا، ماریں گے، قتل کریں گے۔ وہ لفظ قتل استعمال کرتے ہیں، ہم ذرا ڈرتے ہیں، ہم نے کبھی قتل نہیں استعمال کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں انجیل نویسوں نے خوب لفظ استعمال کیا قتل، اور پطرس جب پہلے دن بولنے لگا اس نے کہا تم نے اسے قتل کیا، قتل کیا۔ سمجھتے ہیں؟ ہم ذرا تھوڑی آسمانی الفاظ میں قابو رہتے ہیں، جو زمینی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور انجیل مقدس میں بتایا تم نے قتل کیا، اس کا قتل ہوا، قتل ہوا کہ نہیں؟ قتل کیا گیا، قتل کیا گیا، اور منصوبے سے قتل کیا، پلان کر کے قتل کیا گیا، منصوبہ بنایا گیا، باقاعدہ رشوت دی گئی، سب کچھ یہ سارا، اور میٹنگیں کی گئی، پہلے اس کو اشتہاری بھی بنایا گیا، کہا جس کسی کو کہیں نظر آئے تو ہمیں بتانا، ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔
सारा कुछ। इसलिए जितना उसके बाद जो इंसानों ने किया उसको भी उस नजर से देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं करना चाहिए और हम ऊपर ऊपर की बातें करें और जो जमीन पर उसके साथ हुआ उसको नजरअंदाज कर दे। हम इंजील नवीसों को सलाम पेश करते हैं इसलिए कि उन्होंने जैसा देखा, जैसा हुआ वैसा लिखा है। और मैं इतना खुश होता हूं, मैं कहता हूं ये हमारे लेक्चर जितने मर्जी हवा में उड़ जाएं, उनकी बात उधर ही रहेगी, क्योंकि वो इतनी वजनदार है, इतनी वजनदार है कि वो वाकया जो तारीख में हुआ उसको एज इट इज लिख दिया, वैसे ही वैसा लिख दिया, ताकि उस चश्मे से हम पीते रहें, फिर पढ़े फिर पीते रहें, फिर पढ़े फिर पीते रहें। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये वाकया पौलुस को कैद किया, वो पकड़े हुए थे और वो गवाही दे रहे थे। अग्रिप्पा सुनने ना, अग्रिप्पा बादशाह, ये अमाल की किताब में लिखा है। तो उस वक्त वो कहते बात सुनाओ, वो सुनाने लगा, पूरी कहानी सुनाई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, सारा वो जी उठा, मेरे पर ऐसे जाहिर हुआ। तो सही बात है, कब्र से खाली होना ये अभी तक कोई सबूत नहीं कि वो जी उठा। कई इतने खिलौते, कब्र का खाली होना अभी तक सबूत नहीं कि वो जी उठा है, क्योंकि ये वसवसा पैदा करता है, अंदेशा पैदा करता है और खौफ पैदा करता है, और इसको देखकर ये बंदा पजल हो जाता है, इसीलिए वो पजल होकर वापस आए, कब्र को देखकर पजल होकर। लेकिन एक बीबी है जो उधर खड़ी रही, वो चले आए देखकर, खाली कब्र, कफन देखकर चले आए, पतरस भी यूहन्ना भी, लेकिन बीबी उधर खड़ी रही। ये खड़े होने का मकाम, सही बात है, काली काली वेख के टुर जाना और बात होती है, लेकिन खड़े रहना ये और बात होती है। मैं आपको बताऊं, सही बात है, मुर्दे के पास, कब्र के पास खड़े होने की हिम्मत किसी किसी में होती है, सारे छेती आने चलो फिर चलिए, चलो फिर चले चलिए, लेकिन उधर खड़े रहने की हिम्मत। इसीलिए आपको मैं बताऊं, ये गहरा भेद जो तजस्सुद का है, ये भी बीबी के सुपुर्द किया, और जी उठने का गहरा भेद भी बीबी के सुपुर्द कर दिया, बीबी के सुपुर्द किया। क्यों बीबी के सुपुर्द किया, ये मैं आपको बताऊं। ये खवातीन तालियां बजाओ, तुम्हारे सुपुर्द किया है। ये अगर तुम ये नहीं मतलब ये उसको ले सकते, और अभी तक ये उसको भूल में है कि देखो तुम्हें ये बहुत बड़ा ये भरोसा तुम पर है। क्यों? क्योंकि जिंदगी को जितना करीब से बीबी ने देखा किसी और ने नहीं देखा। समझते हैं? जो 9 माह पेट में पलता है, हाँ जी, फिर वो अंदर से हमें खाता है। आपको पता है बीबी को अंदर से खाता है, उसकी नाफ और नाड़ू बता रहा है कि उसने 9 माह उसको खाया अंदर। हमारा नाफ और नाड़ू बताता है कि हमने 9 माह माँ को अंदर से खाया है, और फिर बाहर आकर भी कई सालों तक खाया है, उसके बदन को खाया, उससे पिया है। इसलिए जितना जिंदगी को करीब से वो जानते हैं, कोई और नहीं जानता, कोई और नहीं जानता। और क्या है, इधर आ चोकला फाड़ ले, हाँ जी, इधर चुकिया तू चोकला। लेकिन ये रोते हुए को कौन उठाए, ये बीमार को कौन उठाए, और फिर ये जो आंखें बंद करके लटक जाए तो इसको कौन पकड़ के रखे, और मरे हुए पर भी फिर भी यकीन ना करे अभी नहीं मरा। ये बीबियां कहती हैं अभी नहीं मरा। मैं आपको बताऊं, ये बंदे पहले कहते हैं मर गया, लेकिन कोई भी मरे तो बीबियां कहते हैं अजय नहीं मरिया, अजय नहीं मरिया। और बातें ऐसी करती हैं उधर, जब बातें ऐसे करते हैं जैसे वाकई नहीं मरा। कहती उठ साढ़े ना गल कर, उठ ही ना गल कर, उठो ना। ये ऐसे करती है क्योंकि इनको मैं आपको बताऊं, बीबियों को मौत पर यकीन ही नहीं है, उनको जिंदगी पर यकीन है, क्योंकि जिंदगी को जन्म देती है, जिंदगी को जन्म देती है, इसलिए उनको कभी मौत पर यकीन आया ही नहीं बीबियां। और मैं आपको बताऊं जो अंदर का राज है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों बीबियों के सुपुर्द किया। ये अभी तक हमारे मर्दों को बीमारी है, वो नहीं भरोसा करते, वो उस वक्त भी नहीं करते। वो बीबियां कहते हैं वो जी उठा, कहते हैं समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। ये सारे कहते थे, सारे वापस आ गए। इसलिए खाली कब्र पर जो जी उठने का ऐलान है ये बीबियों ने किया है। इसके बाद दूसरों ने जब किया वो जाहिर होने पर है। किस पर? जाहिर। दोनों पॉइंट समझना अच्छी तरह। बीबियों ने सिर्फ खाली कब्र देखकर ही ऐलान कर, क्योंकि जी उठा सबसे पहले उनको मिला है, और सलाम करता है। बीबियों को क्या करता है? सलाम करता है। वो सजदा करती हैं और फिर कहते हैं जाकर मेरे भाइयों को बताओ। क्या करो? मेरे भाइयों को बताओ। मैं जानना तुसी ही बताओ, मैं चाहता हूं कि तुम ही बताओ।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी तक अगर कोई शय बची हुई है तो वो भी गिरा दो, जाके गिरा दो, ताकि जी उठने का ऐलान। जब तक मैं तेरे अंदर है तू जी उठने का ऐलान ही नहीं कर सकता। इसलिए जब ये अंदर से खत्म हो जाएगी फिर जी उठने का ऐलान करेगा। इसीलिए उनको कहते हैं जाकर बताओ। उन्होंने साड़ा पवेगा, कोई बात नहीं, जाकर बताओ, जाकर बताओ, तुम बताओ, क्योंकि इतना बड़ा भेद किसी और को जचता ही नहीं। जो इस जिंदगी को बतन में रखकर फिर बाहर उसको, इसीलिए आपको पता है जब ये बीबियां कोई लाश होती है ना तो ये करीब होती है, बंदे परा होकर बैठ गए, वो करीब नहीं आते, बंदे परा होकर बैठ जाते। ये बीबियां हैं जो करीब आती, वो करीब बैठी रहती, नहीं डरती। आंधी नहीं बीबियां डरती हैं, और वो तो मुर्दे से नहीं डरती। आप क्या समझते हैं? और इतना यकीन रखते हैं, इतना मैं भरोसा रखती है, मैं आपको बताऊं, इतना भरोसा रखती है। वो कहती है इंज थोड़ी, जरा सानू एदा मुंह सवार लैन दे, सानू एदा मेकअप कर लैन दो, सानू अच्छी तरह, क्योंकि जी नहीं चाहता कि बेशक मुर्दा है लेकिन सूरत तो अच्छी करके जाना चाहिए। इसीलिए वो उसको बाकायदा मेकअप करके भेजती है। मैं कमाल, इनका विश्वास हमेशा जिंदगी पर है, मर्द मौत पर नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों उन्होंने, इसलिए कि कभी इनको देखना जब वो दफना कर आते हैं तो अगली सुबह, उससे भी अगली सुबह, ये जरा बारीक नुक्ता है, इसको जरा और ज्यादा समझना। अभी भी मरे पर यकीन रखती, कहते हैं नी राती ख्वाब विच मिलिया, हाँ नी राती ख्वाब विच मिलिया, कल आंदा सी इन्हां बच्चियां दा ख्याल रखी, परसों, या कमाल की बात है उसकी मौत के बाद ही फौरन शुरू कर देती है कहना, क्या वो मुझे मिला है, वो मुझे, मैं हर मौत के बाद बीबियों को कहते सुना है वो मुझे मिला है, मैंने देखा है। और जिसको आमतौर पर पूछती रहती है नी अम्मा मिली या की आंधी सही। हैरानगी की बात है, उसको ऐसे यकीन होता है जैसे उसने बात तो जरूर करनी करनी। बात पता क्या है, जिनका वजूद और रूह का रिश्ता हो वो कब टूट पर यकीन रखते हैं, वो टूट पर यकीन नहीं रखते। इसलिए टूट पर वो यकीन रखते हैं जो सिर्फ दूर दूर के फासलों के रिश्ते रखते हैं। इसीलिए आप मुझे बताओ भाई, सिर्फ सब्बत का दिन आराम किया, कब किया? सब्बत का दिन आराम किया, क्योंकि उस दिन मूवमेंट नहीं कर सकती, सब्बत का दिन आराम किया। और इतना बेसब्री से दिन गुजारा है कि अगला दिन सुबह होने से पहले निकल गई है, सुबह होने से पहले निकल गई है। मुझे बताओ क्या लेने गई हैं? कोई जी उठने का ऐलान करने तो नहीं गई, ना जी उठे हुए को देखने गई हैं। सिर्फ पता नहीं उसने कब कैसे दफनाया था उन्होंने। हम चाहती हैं दोबारा खुशबुयां लगाएं, हम चाहती हैं जाकर दोबारा उसको अच्छे तरीके से वो खुशबुयां लगाएं और फूल वगैरह ये सारा लगाएं, क्योंकि हम साड़ी उधर रीझ नहीं पूरी हुई। हाँ जी, अभी देखो जो मसलूब हुआ उससे इश्क है, उससे मोहब्बत है, इसीलिए तो दीदार होता है। जिसको मसलूब से इश्क नहीं उसको उसका दीदार नहीं होता, वो दीदार नहीं, पर वो तो उसको जलवा नहीं होता। इसीलिए भाई ये घर से इसलिए नहीं गई कि उधर जाकर उनको वो जी उठा मिलेगा, इसलिए गई कि उधर जाकर खुशबुयां जल्दी जल्दी लगाकर। इसलिए जिन्होंने मसलूब से प्यार किया उनके लिए ये उसका इंतजार भी हुआ, उसका दीदार भी, वो देख भी सके और उन्होंने इसका वेट भी किया। इसलिए आप देखोगे दोनों का फर्क। वो खाली कब्र से वापस आ गए, इंतजार नहीं किया, इन्होंने वेट किया, रोती रही उधर, रोती रही। और देखो फिर पूछने वाले भी आ गए, पूछने वाले भी आ गए, दो फरिश्ते। जब बात गहरी हो तो फरिश्तों को आना पड़ता है, सही बात है। जब तजस्सुद हुआ तो फरिश्ते आए, और जब मुर्दों में से जी उठा तो फरिश्ते आए, क्योंकि दोनों बातों की समझ फरिश्तों के बगैर आ ही नहीं सकती। फरिश्ते समझाएं तो समझ आए, वरना नहीं आ सकती। इसीलिए फरिश्ते उधर। बीबी क्यों रोती है? बीबी क्यों रोती है? वाह शुक्र है किसी ने तो पूछा क्यों रोता है। सही बात है, परसों से ये वाकया हुआ, कोई ये दिलासा भी नहीं देता था क्यों रोते हो, सब अपने अपने कपड़े लेकर निकल गए। इसीलिए कोई पूछ रहा क्या बीबी तू क्यों रोती है? इतने में वो कहते मेरे खुदावंद को उठा कर ले गए। ये बात कर ही रही है कि पीछे से कोई और खड़ा है, तो फिर ये पीछे, क्योंकि ये फरिश्ता उससे डायलॉग करते हुए पीछे देखना, इसलिए पीछे मुड़ के देखते। तो उसने भी कहा बीबी तू क्यों रोती है? फरिश्ता भी कहता बीबी तू क्यों रोती है, और यीशु भी कहता बीबी तू क्यों रोती है। दोनों ने कहा
बीबी तो क्यों रोती है? शुक्र है, इस सवाल पर रहना चाहिए जरूर। क्यों रोती है? क्यों रोती है? कम अज कम ऐ खातून, तेरे रोने की फिक्र ऊपर वाले को भी है, फरिश्तों को भी है, वो जो मुर्दों में से जी उठा उसको भी है। इसीलिए तुझसे कहता है बीबी तो क्यों रोती है, क्योंकि तेरे रोने की रीजन उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता रीजन जो है, जो पीछे वजह। इसीलिए वो पूछता है बीबी तो क्यों रोती है? उसने कहा वो उसे उठा कर ले गए और यहां पर हम इम्तिहान होता है जी उठेगा। जब जाहिर होता है जी उठा हुआ, जब जाहिर होता है फिर इम्तिहान होता है। पता क्यों? जी उठा हुआ मसीह कभी भी जिंदगी में उसने ये नहीं किया किसी को सुना भाई, ये होता है ना, किसी को ढीठ करना, किसी को पची करना, किसी को शर्मिंदा करना, लो भाई वो तो नस गए सो ना। हाँ, फिर ये होता है जो भाग गए और जी उठने के बाद फिर उन्हीं की तरफ। इसलिए उस जी उठे का भरोसा देखिए, जो भाग गए, जो इनकार करके, जो मुनकर हुए, दोबारा उन्हीं के पास जाकर क्या कहते हैं? कहा तुम्हें सलामती हासिल। क्या? तुम्हें सलामती। कभी एक दफा भी नहीं कहा सुनाओ नस गए सो ना, मैं वेख लो मैं जी उठिया जे। एक दफा भी नहीं कहा ऐ वेख लो मैं जी उठिया जे, ऐ वेख लो तुसी नस गए। नो, ऐसी बातें नहीं। वो जी उठने से पहले भी फिरौतन था और जी उठने के बाद भी फिरौतन है। उसने फिरौतनी खत्म नहीं की। ये ना कोई समझे जी उठने के बाद फिरौतनी खत्म हो गई, जी उठने के बाद भी फिरौतन है। और इतना फिरौतन है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। लगता है जैसे माली हो, जैसे बाग का माली, बाग का भी वो बागबान लगता है। फिर किसी को मुसाफिर लगता है, किसी को हम सफर लगता है, किसी को नाश्ता तैयार करने वाला लगता है, वो किसी को हम सफर लगता है, किसी को रास्ते में सफर करने वाला लगता है। इसीलिए ये देखिए, मैं समझता हूं कि ये वाला जो है ना, खास तौर पर ये हम सफरी, इसके अंदर दोखना, उसका जाहिर होना बहुत मिस्टीरियस है, बड़ा पुर्राज है, पूरा पुरस्रार है। क्योंकि वो कभी भी ऐसे आपको नहीं होगा फौरन मैं जी उठाऊं। साथ चलते चलते बात करते करते, गुफ्तगू करते करते, आपकी रोजमर्रा जिंदगी में उतरते फिर आप पहचान पाओगे। क्योंकि इतनी रोशनी दे देता है, इतना नूर दे देता है कि वो जब तुम्हारे साथ चल रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करता है, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करता है, और फिर जाकर तुम्हें रोजमर्रा जिंदगी में आकर तुम्हारी आंखें खोलता है, और फिर तुम पहचान सकते हो कि जी उठा मसीह हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। इसीलिए इन्होंने जो गवाहियां दी हैं वो ये दिखाया कि उसे पहचानना पड़ता है, थोड़ा सा वक्त स्पेंड करके पहचानना पड़ता है, थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है। और मसलूब को सबने देखा, जी उठे को सबने नहीं देखा, जी उठे को सबने नहीं देखा। इसलिए वो कम थे जो उसको देख सके। कौन देख सके हैं? कौन? ये देखना, जिस पर वो खुद अपने आप जाहिर करता है, जिस पर वो खुद अपना आप दिखाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जी तो उठा, लेकिन जी उठने से पहले भी जी उठा, जी उठने से पहले भी जी उठा। जो कयामत से पहले कयामत है वो देखने वाली है। जिसने कयामत से पहले कयामत नहीं देखी उसको पता नहीं लगेगा कि जी उठने वाला है कौन। ये कौन सा है जो जी उठा है, जो जी उठा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2-3 निशाना दिए, कहा आपको मैं यूना नबी के अलावा कोई और निशान नहीं दूंगा। हाँ, यूनुस नबी के अलावा। अपने जी उठने के बारे में कि जैसे वो तीन का आदत उधर लगाया कि जैसे वो मछली के पेट में रहा वैसे में इब्ने इंसान भी कब्र में रहेगा। और जी उठने का उधर मैसेज था। लेकिन बात सुनने वाली, हमने मसलूब को देखा है सलीब पर, और पता क्या देखा है? हमने अक्सर दफा उसे मरते हुए देखा है। क्या? मरते हुए। कैसे मरा है? मिसाल के तौर पर कौन सा दुख, कौन से जख्म, कौन सी तकलीफ, ये सारा नोट किया। सही बात है, उसमें एक और जाविया देखने वाला। पता है क्या? अगर जी उठना देखना चाहते हो, जो मत्ती ने देखा है, वो पता है वो क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, ये ना देख कि सलीब पर कोई कैसे मरा है, ये ना देख, ये देख कि सलीब पर कोई कैसे जी गया है, सलीब पर कोई कैसे जी गया है। अगर ये देखोगे तो फिर उसके जी उठने पर यकीन करोगे।
कोई कैसे जी गया है, उसका जीना देख, वो छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक ये जीना देख ले, कैसे जीना है, समझते हैं ना, कैसे जीना है वो देखने वाला है। अरे प्यासा रहकर उसका पीना तो देख ले, प्यासा रहकर उसका पीना तो देख ले। अरे मौत के मुंह में बैठकर उसका जीना तो देख ले, मौत के मुंह में बैठकर उसका जीना तो देख ले, जरा जीने का अंदाज देख, मरने का ना देख, जीने का अंदाज देख। क्योंकि इंजील नवीसों ने उधर लफ्ज मरना लगाया ही नहीं, लफ्ज मौत या मरना ऐसा नहीं इस्तेमाल किया। चारों ने क्या लिखा हुआ है, उसने जान दे दी, चारों लिखते हैं उसने जान दे दी। दो कहते हैं उसने चिल्लाकर जान दे दी, और एक कहता है उसने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं, यूं जान दे दी, और चौथा कहता है उसने सर झुका के अपनी जान दे दी। ये जान देने का, क्योंकि उनको पता है असल मामला जान देने का है। क्या है? जान देने का, ये नहीं है, क्योंकि वो उसका दावा था कि अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। इसीलिए उसने कहा यहां पर देख लो कि अच्छा चरवाहा कौन है, जो अपनी भेड़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देता है। इसीलिए जान देते हुए देखिए और फिर जीते हुए देखिए, जान देते हुए देखिए और इन घड़ियों में जीते हुए देखिए। जो उन घड़ियों में उसको जीते हुए देख किया वो समझ जाएगा कि जिंदगी क्या होती है। इसलिए मैंने कहा यूनुस नबी को ये जो बात आप जानते हैं अच्छी तरह कि जाओ नैनवा के लोगों को बताओ, गए भी, आपको पता है जिस हाल में गए वही है, और पहुंच गए उधर और जाकर खबर भी दी और कहा कि 40 दिन रात में ये नैनवा खत्म हो जाएगा। लेकिन सही बात है वो लोग तब्दील होते हैं। लेकिन ये किताब जो यूनुस की है, मेरा मकसद जिस तरफ है वो ये जो यूनुस की किताब है, वो उसका एंड बड़ा अजीब है, एंड बहुत अजीब है। पता क्या, ये यूनुस नाराज हो जाते हैं, मेरे सर पे ऊपर जो बेल थी रेंट था ये भी खत्म हो गई, नाराज हो जाते हैं। खुदा ने कहा कि मैं, सुनिए, मैं ये तू नाराज है, किस क्या वजह है, क्यों नाराज है? क्या तेरे पास कोई नाराज होने का सबब है? इस अरेंड के सबब से तू नाराज होता है जिसे शब भर में उगा और उगकर सूख गया, इतनी देर में उगा और सूख गया है, इस वजह से तू नाराज हो रहा है। तेरे पास नाराज होने की कोई वजह है? वो कहते हैं चुप। लेकिन किताब खत्म कहां हो रही? ऐसी कोई किताब नहीं है जो इस तरह खत्म हो जैसी ये खत्म करता है। किताब बड़ी मजेदार खत्म की है। पता है क्या कहा? कहने लगा तेनू अरेंड दी फिक्र है, तेनू इस बेल, तुझे इस बेल की खबर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस शहर नैनवा में कितने लोग हैं? कोई 1,20,000 लोग हैं मवाशी के अलावा, और बाकी जितनी भी जिंदगी है उसके अलावा कोई 1,20,000 लोग हैं जो दाएं और बाएं में फर्क नहीं कर सकते। क्या दाएं और बाएं में फर्क नहीं कर सकते? मैनू दस, तेनू एक अरेंड दी फिक्र है, हाँ, और मुझे 1,20,000 लोग हैं जो क्या नहीं कर सकते? दाएं और बाएं में। इधर किताब बंद कर दी, आगे लिखे ही कख नहीं, आगे लिखा ही कुछ नहीं, किताब इधर बंद कर दी। किस बात पे जी? ये 1,20,000 लोग हैं जो दाएं और बाएं में फर्क नहीं कर सकते। खुदा ने इधर अपनी बात ही बंद कर दिया, किताब बंद कर दी। बंदा पूछे कोई किताब बंद करन दा हाल है? बस कोई बात नहीं, बस इतना कहा दाएं और बाएं में फर्क नहीं कर सकते। और हमारे खुदावन ने उच्चेची ये तमसीली कहा कि जिस तरह यूनुस उस तरह मैं, जिस तरह यूनुस उस तरह मैं। उसको कहा तमसील पेश कर दे, मैं इंजील पेश कर दे। वो तमसील पेश कर दे, मैं इंजील पेश कर दे। क्या है? क्यों इधर इतना ओपन एंडेड खत्म कर दिया? क्यों इतना खुला छोड़ दिया? किताब ऐसे तो नहीं बंद होती कि इस शहर में 1,20,000 लोग हैं जो दाएं और बाएं में फर्क नहीं कर सकते, जो अपने दाएं और बाएं में। खुदा दलील दे रहा है, क्या कर रहा है? दलील दे रहा है यूनुस के सामने लोगों को डिफेंड कर रहा है, यूनुस के सामने लोगों को डिफेंड कर रहा है। अरे मछली के पेट में रहना तमसील है, लेकिन ये किताब का एंड उससे भी बड़ी तमसील है। पता है क्या खुदा क्या कहते हैं यूनुस को? ये लोगों को देख, ये सज्जे और खब्बे से फर्क नहीं कर सकते। पता है क्या? और ये तमसील है, लेकिन एक दिन हकीकत होगी। खुदा को सलीब पर ये कहना पड़ेगा अब्बा इनको माफ कर दे, क्योंकि ये अपने दाएं और बाएं में फर्क नहीं कर सकते, इनको पता ही नहीं कि क्या करते हैं। तमसील तो किताब के एंड पे रख दी,
तमसील खुदा किताब के एंड पे रख दी। इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो उधर रखी हुई है ना किताब के एंड पे, बंदा पूछे आपने ऐसे ओपन क्यों छोड़ दिया? उसने कहा मैंने ओपन नहीं छोड़ा, मैंने इसलिए ओपन में छोड़ा ताकि जब कभी खुदा फिर कहे कि इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते, फिर उसका जीना देखना, फिर मरना ना देखना। क्या देखना? जीना देखना कि ये देख जिस दर्द से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये जान जी जाती है, ये दी जाती है तो जी जाती है। जो जिया जाता है वो दिया जाता है, जो दे नहीं सकता वो जी नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूं जो उसका जीने का अंदाज है वो नोटेबल। क्या वो मुकद्दस मत्ती फरमाते हैं, कहने लगे कि जब वो मुर्दों में से जी नहीं उठा था, अभी स्लीप पर सिर्फ जान दी थी। क्या थी? जान दी थी। और उस वक्त हमने कयामत देख ली। हमने क्या किया? कयामत देख ली। क्या हुआ? जमीन लर्जी, जलजला हुआ, चट्टाने तिड़क गई, कब्रों के मुंह खुल गए। हाँ जी, और हमने मुकद्दसों के जिस्म, जो पुराने मुकद्दसों के जिस्म बाहर निकलकर फिरते हुए देखे। हमने कयामत देख ली। तुसा त्रीजे दिन वेखनी, असा उदण ही वेख ली। हमने उसी दिन देख ली, क्योंकि वो जो मुर्दों में से जी उठेगा उसने आपको पता है पहले खुद नहीं जी उठा, पहले तुझे जिंदा किया। आपको पता है आपको जिंदा किया। क्या किया? आपको पता है लाजर को जिंदा किया तो उस वक्त मामला बना था, उस वक्त मुकदमा बना था, उस वक्त ये सारी मीटिंग इकट्ठी हुई थी। हुण लाजर नूं भी मारो तो इनू भी मारो, दोनों को खत्म। क्यों भला? इसको पता है इसकी वजह से दुनिया सब समझ गई थी कि वो कौन है। इसीलिए ये वो मकाम है। उसने कहा मेरी बारी बाद में, लेकिन है इंसान तेरी बारी पहले, तू पहले जी उठ, तुझे पहले जिंदा किया है। और ये भी बड़ी बात है उससे कि मैं तेरी कब्र में दाखिल नहीं हुआ, मैं अपनी कब्र में दाखिल नहीं हुआ, तेरी कब्र में दाखिल हुआ। कब्र किसकी है? इंसान की। इसलिए तेरी कब्र में दाखिल हुआ, क्योंकि मुझे कब्र की जरूरत नहीं, तेरी कब्र में दाखिल हुआ ताकि हमेशा के लिए से खोल दूं। क्या करूं? खोल दूं, और इतना खोल दूं कि ना जब मेरे जी उठने का ऐलान हो तो तेरे भी जी उठने का ऐलान, तेरे जी उठना। इसलिए इंसान को जिंदा किया है। किसको? इंसान को जिंदा किया है, और इंसान को जिंदा कर दिया है। और मैं समझता हूं कि जो इंसान को उसने अता कर दिया वो ये कि भाई खुदा को तो जी उठने की जरूरत नहीं, तुझे जिंदा, अपनी इंसानियत, अपने इस इंसान को लेकर मुर्दों में से जिंदा किया। इसलिए समझना कि उसने खुशबू भी दी है तो फूल खिला के दी है, खुशबू भी दी है तो फूल खिला के दी है। मैं भी दी तो नई बना के दी है, मैं भी दी तो नई बना के दी है। और मोहब्बत के शहनशाह ने क्या पूछते हो वफादारी उसकी, क्या पूछते हो वफादारी उसकी असद। मोहब्बत के शहनशाह ने जान भी दी है तो सर झुका के दी। मोहब्बत के शहनशाह ने जान भी दी है तो सर झुका के दी है। क्या किया है? जान दी है तो सर झुका के दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि उसने, पता है कैसे जी उठा है। जो कहेगा कि वो जी उठा है, जो कहेगा कि वो कहो जी उठा है, कहो वो जी उठा है। जो कहेगा वो जी उठेगा, वो भी जी उठेगा। जो कहता है जी उठा है वो भी जी उठेगा। ये पक्की गारंटी उसने साथ जोड़ दिया। जो कहेगा ना मसीह जी उठा है वो जी उठेगा, बल्कि अब से जी उठेगा। उसके अंदर की जिंदगी जी उठी हुई जिंदगी होगी। और पता है कैसे? मैं आपको एक वाकया बताता हूं। जब वो गिरफ्तार करके ले जा रहे थे ना, ये ना सिर्फ कहना कि भाई ये सारा मामला कब्र पर है, ये कब्र से आगे जाहिर होने पर है, क्योंकि जिस तरह वो जाहिर होता है उनको और यकीन बढ़ता है। इसलिए कोई ये ना कहे कि खाली कब्र पर ईमान लाए, वो उस पर ईमान लाए जो मुर्दों में से जी उठा और फिर जाहिर हुआ। मुझे बताओ, पतरस को जब मसीह को गिरफ्तार करके लाए गतसमनी से, तो पतरस पीछे पीछे चलता था। कैसे चलता था? फासला रख। कैसे? फासला रख। लिखा हुआ है फासला। लूका फरमाते हैं फासला रख के। पतरस पीछे पीछे फासला रख के चला और गए कचहरी में, कचहरी में ले गए। और वो उस्तादों, वो जो थे बड़े काहिन, उनकी कचहरी में थे, और पतरस नीचे था। ये जो प्यादे थे उनकी कचहरी में।
ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਬੜ ਲਾਇਆ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਕਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਇਨ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਡਾ ਪਿਆ चलते रहे, मुक्के पे चलते। लेकिन यहाँ सवालों जवाब हो रहे, उससे उस्ताद से पूछा जा रहा है शागिर्दों के बारे में, शागिर्द से पूछा जा रहा है उस्ताद के बारे में। कोई पूरा उतर रहा है, कोई पूरा नहीं उतर रहा। दो कचहरियां, एक उसकी गुलामों की और एक भाई ये गुलामों की कचहरी में क्यों बैठे हो, गुलामों की कचहरी में क्यों बैठे हो? और आग सेक रहे उनकी जिनकी जो पकड़ के लाए, आग सेक रहे उनकी जेड़े जेड़े फड़ के ले आंदे उन्हां दी अग सेकने। और चलिया जदों लोकां दी बलदी सेकना पिया, गैरां दी बलदी सेकना, तेनू ओदा इकरार करना किवें आ सकदा है? आप उसका इकरार नहीं कर सकते हो। जिदन साडी बलदी सेकेगा वो झील के किनारे और हम कोले की आग बुलाएंगे, फिर तुम्हें इकरार करना आएगा, फिर तुम्हें इकरार करना आएगा। जब जी उठने के बाद हमसे मिलोगे, अभी नहीं आएगा। गैरां दी बलदी सेकना तेन कोई इकरार नहीं होना। और वो ऊपर उस्ताद से पूछ रहे हैं, लेकिन यहां पर असल में जिंदा करने का मामला है। मैं जो ला रहा हूं फासला रख के आ रहा है। फासला पता क्या होता है? फासला क्या कर रहे हैं? ओए लोकी वेखण ते आखण कि मैं ओदे नाल नहीं, हां जी, लोकी वेख लैण ते आखण मैं ओदे नाल नहीं, ते जे ओ वेखे ते ओनू लगे कि मैं ओदे पीछे आ रहा हूं। भला दू नू धोखा किवें दे सकना? दो को तो नहीं दे सकते, दो को तो नहीं। कित्थों फासले पा लें? हाँ जी, किवें फासले पै गए? अरे हमारे हाथ से रोटी खाई, फिर फासले कैसे हो? हाँ जी, और फासला रख के आता है और जाकर प्यादों की जलाई हुई आग पे बैठ गया। जवाब नहीं आता। क्या तू भी उसके साथ है? मैनू नहीं पता की आंदे हो पे। तू भी उसके साथ? मैनू नहीं पता की आंदे हो पे। तेरी ते बोली दस दी तू ओदे नाल, मेरे को कसम करा लो मैं नहीं उन्हें जानता। फिर तीसरे ने कहा तू भी उन्हीं में से है, तू उनके साथ है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहते। और ऊपर आपको पता है तीनों दफा कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो और किन्नू पता है? हाँ जी, जिन्नू पता है वही प्यादा मैनू नहीं पता। वो कहता है मुझे नहीं पता। और ऊपर से क्या हुआ? पीछे मुड़ के देख, तेनू सारे चोखे पते दिते ने, तू ही प्यादा मैनू नहीं पता। हाँ जी, चोखे पते तेनू ही तो दिते हुए ने और प्यादा मैनू नहीं पता। इसलिए पता है तो इसीलिए मुंह से निकला मुझे नहीं पता। और मुड़ के देखा, जब मुड़ के देखा तो रोने लगा, मुड़ के देखा तो रोने लगा। ये राज है इधर। कईयों को जी उठने के बाद भी नहीं समझ आई, कईयों को जी उठने से पहले समझ आ गई। हकीकत की बात क्या है? सुना डॉक्टर साहब, पीछे मुड़ के देखा है और लोग समझते हैं, अभी तक यही समझते हैं कि शायद उसने यही रड़काया होगा कि सना फिर नसिया कि नहीं, सना फिर इनकार किया कि नहीं, सना फिर मुंह निकले कि नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, तेनू आख्या सी ना तू इनकार करेगा, ये नहीं कभी उसने कहा। तेनू आख्या सी ना, ये नहीं कभी कहा। नो, शर्मिंदा नहीं करता। जब किसी को कहते हैं ना सना, फिर वो और भी ढीठ हो जाता है और शर्मिंदा हो जाता है। और जो ढीठ हो जाते हैं फिर इकरार नहीं करते, फिर उनको रोना भी नहीं आता। मैं आपको रोना भी नहीं आता। क्यों नहीं रोना आता? क्योंकि जेड़ा अगे मैनू पची करन दिया, ढीठ करन दिया, मैं की रोना है? इसलिए अगर वो मुड़ के देखता है तो इसलिए नहीं कि शर्मिंदा कर, नो नो नो, उसको पची करने के लिए नहीं, ढीठ करने के लिए नहीं। पता क्या करने के लिए? पतरस गल कुट के सुन, असी पिछों क्यों मुड़ के वेख्या तेनू? तू इनकार कर ते लख वारी कर। तू इनकारियां करने, असी ते को सरदारियां देने आ। तू इनकार कर, असी तेनू सरदार बना दे। हम तुझे सरदार बना देते। क्या मतलब? जो असल बात है, पीछे इसलिए नहीं मुड़ के देखा तुझे पची करे, पीछे इसलिए मुड़ के उसकी तेरी तरफ देखा है कि पतरस तुझे चुना था, तुझे प्यार किया था और अब भी प्यार कर। तू इनकार कर, हम तुझे प्यार करते हैं। और रोना इस बात पे नहीं आता कि तुझे ढीठ कर रहे, रोना इस बात पे आता है कि अब भी प्यार करते हो। इस बात पे रोना आता है, इसलिए ज़ारदार रोया। पता है क्या? शर्म। यीशु ने देखा नहीं उस पर, ये नजरों की बात है, नजरों की बात जो उसको देखा है। नजरों ने नजरों को देखा है, नजरों ने देखा है, नजरों ने पढ़ भी लिया है, नजरों ने रोना भी शुरू कर दिया। क्योंकि नजर कह गई, नजर सुन लिया, इसलिए रोना भी शुरू कर दिया। किस बात पे? शर्मिंदा करने पे के लिए नहीं। अरे यीशु उसको देखता नहीं इसलिए कि उसे शर्मिंदा कर दे, अरे इसलिए देखता है कि उसे जिंदा कर दिया। पतरस तुझे जिंदा कर दिया।
देखा तो जिंदा कर दिया। इसलिए मैं ये इसलिए बताना चाहता था, अरे भाई अगर क़यामत के जरासीम पहले ना होते तो स्लीपर, आपको पता है स्लीपर जो जी गया ना, गड़ियां जो पी गया है और जो जी गया है वो वाली देखने वाली, क्योंकि उधर जी उठने का है, उधर जी उठा है, जीने वाला है। इसीलिए उन्होंने कहा जान दी। क्यों कहते जान वो दे जिसमें जान हो, जान वो दे जिसमें जान हो, जिसके अंदर जान ही को नहीं होने किधर। इसीलिए पौलुस कहता है, अरे भाई उगेगा वो जिसमें जान होगी, बीज वो उगेगा जिसमें जान होगी, और वो फना भी वही होगा जिसमें जान होगी। फिर फना बका को पहन लेगी, फिर कहा जाएगा कि मौत फतह का लुकमा होगी, फिर कहा जाएगा ए मौत तेरा डंक कहां रहा, फिर ये ऐलान किया जाएगा। इसलिए ये जो उसके अंदर की चीज है वो ये, अगर जान रखते हुए जान हो इधर तो फिर मर नहीं सकता, फिर मर नहीं सकता। और जान वो होती है जो जान दे सकता हो, जान वो जो दे सकता हो, जो दे नहीं सकता वो जिंदा नहीं। इसीलिए उसको सलीब पर देखना हो तो जी उठने की नजर से देखना, फिर समझ आएगी। जी उठने की ऐनक लगाओगे तो फिर समझ आएगी उधर क्या हो रहा है, फिर समझोगे कि दाएं बाएं को क्या पैगाम दिया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने लिखा, दिन चढ़दे दी लाली वांगर रब दा नाम सितार गया, दिन चढ़दे दी लाली वांगर रब दा नाम सितार गया। अज मेरा यसू कब्रों उठिया, उजड़िया वस संसार गया। मरियम दोवें तड़के तड़के, मरियम दोवें तड़के तड़के, जिस दम कोई न पत्ता खड़के, उठ के गईयां वल कबर दे, अगों वेखे पत्थर लुढ़के, उदों खड़के तार जिगर दे, कहन फरिश्ते कफन नूं फड़के, ओ मौत दी संगी घुट के सोना झूठ ते सच नतार गया। अज मेरा यसू कब्रों उठिया, उजड़िया वस संसार गया। मैं ना ये एक नुक्ता है, इसके साथ बंद किए देता हूँ। सही बात है कि ये जब इनकी बात सुनते हैं ना चारों इंजील नवीसों की, तो समझना कि 3-3 चैप्टर इन तीनों ने दिए हैं। हमारे मत्ती ने भी 3 चैप्टर दिए, लूका ने 3 चैप्टर दिए, और हमारे मरकस ने 3 चैप्टर, ये कि यूहन्ना ने 4 दिए इस वाक्या को। ये जो है ना दुख सहने का, मरने का, जी उठने का 4 दिए, और 4 चैप्टर एक के 3-3 चैप्टर, इनको जुबानी याद करना, देखना, तकरीरों पे ना जाना, तशरीहों पे ना जाना, उनको पढ़ के देखना। उधर पढ़ के देखोगे आपको कुछ और मोती मिलेंगे, आपको कुछ और रूहानियत मिलेगी, और आप कहोगे, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, हमारे लोगों को तकरीरें बहुत आ गई, हमारे लोगों ने बड़े दमन छेड़े बहुत कर लिए, लेकिन इनको जीसस की स्टोरी नहीं आती, यीशु मसीह की कहानी नहीं आती। इसको दोबारा नए सिरे से पढ़िए, नए सिरे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। और अभी बहुत कुछ उधर है, और अभी बहुत कुछ बयान होने वाला है, अभी बहुत कुछ देखने वाला है, उसको नए सिरे से पढ़िए और दोबारा बाकायदा पढ़िए। ये 3-3 चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये 3-3 उनके और चौथे 4 उसके यूहन्ना के, सारों पढ़िए, और फिर पता चलेगा क्यों वो कहता था अभी मेरी घड़ी नहीं आई, अभी मेरी घड़ी नहीं आई। अभी 3-4 दफा कहकर फिर जब आ गए तो कहने लगे अभी मेरी घड़ी आ गई, अभी मेरा वक्त आ पहुंचा, अभी मेरा वक्त आ पहुंचा। और बताया कि दो तरह से कहने लगे, थोड़ी देर के बाद आप मुझे नहीं देखोगे और थोड़ी देर के बाद मुझे देख लोगे, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार। ये बार बार अपने जाने और जी उठने का, यूहन्ना 15, 16, 17 और ये 17 तीनों ये बताते हैं बार बार किस तरह वो जी उठने के बारे में लोगों के दिल तैयार करता है, जी उठने के बारे में दिल तैयार करता है, नजर तैयार करता है। इसीलिए वो कहते हैं जाकर देखा हमने देखा मौत को, हमने मौत को मरते हुए देखा है। मौत को मरते पता कैसे देखा? कब्र खाली पड़ी है, कफन पड़ा है, रुमाल अलग पड़ा है। अरे मौत का सारा सौदा खिल रहा वेख्या, मौत खिलरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, और हमने जी उठे को देखा है। देख रहे हैं, इसलिए कि हमने मौत को मरते हुए देखा है। मौत ने उसको अपने मुंह में लिया, मौत ने लिया उसको अपने मुंह में, लेकिन भूल गई कि जिंदगी को खा नहीं सकती, जिंदगी को खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए जब ये मौत ने उसको लिया तो खुद मर गई, मौत उसको खाकर खुद मर गई, क्योंकि उसको मार नहीं सकती,
इसलिए मैं समझता हूं कि जिसने जी उठे का ऐलान किया, जिसने जी उठे वो खुद जी उठा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 4 बातें हैं जो आपसे बंद करने के लिए कहते हैं। नंबर 1, आखिरी, जी उठे मसीह के वादे, जी उठे मसीह के प्रॉमिस हैं, और जी उठे मसीह के प्रॉमिस बहुत खूबसूरत है। जी उठा मसीह जाहिर भी होता है, वादा भी करता है, और वादे 4 हैं। चारों में आपको बता दें। मरकस में वो कहता है अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम जाओ। वाह, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं, उसी तरह अब तुम्हारी बारी। जिसने मुझे देख लिया उसने बाप को देख लिया, अब तुम्हारी बारी और तुम जाओ। और पता है वादे क्या किया? नंबर 1, मैं जाओ, मेरे निशानात तुम्हारे साथ होंगे। क्या होंगे? पहला वादा, मेरे निशानात तुम्हारे साथ होंगे। क्या साथ होगा? मेरे निशानात, शफा के निशानात और बदरुओं को निकालने के निशानात, ये सारे निशानात तुम्हारे साथ होंगे। पहला वादा। मरकस लूका, जाओ, मेरा रूह तुम्हारे साथ है, मेरा रूह तुम्हारे साथ है, मेरे निशानात तुम्हारे साथ होंगे, मेरा रूह तुम्हारे साथ होगा। तीसरा यूहन्ना, मेरा इख्तियार तुम्हारे साथ है। क्या होगा? मेरा इख्तियार तुम्हारे साथ होगा। 3 हो गए। और मत्ती पता क्या कहते हैं? कहते हैं अरे मेरा इख्तियार तुम्हारे साथ होगा, मैं ये जो खास तौर पर मेरे निशानात तुम्हारे साथ होंगे और मेरा रूह तुम्हारे साथ होगा। और मत्ती पता क्या लिखते हैं? कहते हैं मैं खुद तुम्हारे साथ हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ हूंगा, मेरे निशान तुम्हारे साथ होंगे, मेरा रूह तुम्हारे साथ होगा और मेरा इख्तियार तुम्हारे साथ होगा और मैं खुद तुम्हारे साथ हूंगा। ये 4 प्रॉमिस है तुम्हारे लिए, 4। और जी उठे के प्रॉमिस है, याद रखो। अगर जी उठे पर ईमान रखते हो तो 4 प्रॉमिस भी याद रखो, 4 वादे याद रखो। उसके निशान तुम्हारे साथ, उसका रूह तुम्हारे साथ और उसका इख्तियार तुम्हारे साथ, और खास तौर पर उसका अपना आप तुम्हारे साथ, वो खुद तुम्हारे साथ। इसीलिए मैंने कहा यूहन्ना से, यीशु की कहानी कहां से शुरू करते हो, किधर खत्म करते हो? कहते हैं ये मरकस पता है क्या कहते हैं? तो उसकी कहानी यर्दन से शुरू होती है। किधर? यर्दन से शुरू होती है। यर्दन से बपतिस्मा लिया और कहानी शुरू हो गई। इसके बाद मत्ती, नहीं भाई, उसकी कहानी यर्दन से शुरू नहीं होती, उसकी कहानी इब्राहिम से शुरू होती है। कहां से? इब्राहिम से शुरू होती है। लेकिन बाद में लूका आते, वो कहते नहीं, ना उसकी कहानी यर्दन से शुरू होती है और ना उसकी कहानी इब्राहिम से शुरू होती है, उसकी कहानी तो आदम से शुरू होती है। अच्छा, उसकी कहानी आदम से शुरू होती है। और फिर यूहन्ना कहते नहीं, उसकी कहानी ना यर्दन से शुरू होती है, ना इब्राहिम से शुरू होती है, ना आदम से शुरू होती है। अरे उसकी कहानी कहीं से शुरू नहीं होती, उससे सारी कहानियां शुरू होती है। वो किसी जगह से नहीं शुरू होती, उससे सब कहानियां शुरू होती हैं, उससे सब शुरू होती हैं। इसीलिए उसने कहा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, वही कलाम खुदा था, उसी से सब कुछ हुआ। क्योंकि जो शुरू हुआ वो उससे हुआ है, उससे हुआ है। इसीलिए वो शुरू नहीं हुआ, उससे सब शुरू हुआ। इसीलिए कहानी को दूसरी तरह देखिए। और मैं समझता हूं अगर उस तरतीब से देखोगे तो फिर समझ जाओगे कि ये जी उठा आकर तुम्हें क्या कहता है। 2 खास तौर पर देता है मुबारकबादियां। एक पता क्या किया? जब पांव धोए तो मुबारकबादी दी, और एक जब लूक तोमा पर जाहिर हुआ तो मुबारकबादी दी। यूहन्ना के मुताबिक 2 मुबारकबादियां उसकी। पैर धोए तो बैठ गया, पैर धोकर बैठ गया, कहने लगे तुम मुझे उस्ताद कहते हो, ठीक कहते हो, पहला कभी नहीं आख्या। वाह, अरे पांव धोए तो कहा मैं ठीक कहते, मैं उस्ताद हूं। पैर धो ले तो आख्या मैं ठीक कहते हो, मैं उस्ताद हूं। यार समझ तो जाओ, सही बात। सारी उम्र आपको कभी नहीं कहा कि भाई मैं उस्ताद हूं, मैं उस्ताद, आप कहते फिरो। लेकिन जब पांव धो लिए तो कहने लगा आप मुझे उस्ताद कहते हो, ठीक कहते हो, मैं हूं। और सही बात है, वो है, मैं हूं। और पता है क्या? पांव क्यों शुरू किया? पांव से पता है क्या? इसलिए कि जितने भी इधर बैठे हो सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, आप जानते हो जब दिल तक पहुंचना हो तो पांव के जरिए पहुंचा जाता है। जब दिल तक पहुंचना हो तो ऑपरेशन फिर पांव से शुरू करते हैं। इसलिए जिसने दिल तक पहुंचना हो फिर पांव से शुरू करता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, उसने कहा अगर इस काम को समझकर इस पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। एक, और फिर जब पत्र तोमा पर जाहिर हुआ तो फिर कहा
तोमा आप तो देखकर यकीन करते हो ना। मुबारक वो होंगे जो बगैर देखे ईमान लाएंगे, इसलिए ये मुबारकबादी भी तुम्हारे लिए, जो बगैर देखे ईमान लाए। इसलिए मैं समझता हूँ मुबारकबादियाँ उसकी मिल जाए आपको, एक खिदमत की और एक ये जाहिर होने की, गवाही देने की। जो खिदमत करेगा वही गवाह होगा, जो खिदमत नहीं करेगा वो गवाह नहीं होगा। इसलिए मैं इस बात पर बंद किए देता हूँ। सुनिए कि जी उठा मसीह तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हम सफर है, लेकिन भुले खिंचना रियाज होगा वो आम जिंदगी में। कदी वो माली लगेगा, कदी वो सफर में लगेगा, कभी हम सफर लगेगा, कदी नाल तुहाडी काम करदा, कदी तुहाडा हाथ वंडांदा, लेकिन पहचाना इसलिए नहीं जाता क्योंकि जे सानू आदत नहीं कि आम आदमी की इज्जत करिए। अगर आम आदमी की इज्जत करोगे तो आम आदमी में पहचान भी लोगे, आम आदमी को पहचान भी लेगे। अभी तक हमारी ट्रेनिंग हो गई है, जेड़ा तगड़ा है उहदे नाल किंज पेश होना है, जेड़ा माड़ा है उहदे नाल किंज पेश होना है। सही बात है, अभी तक हमने सीखा ये है कि तगड़े के साथ कैसे पेश है। हमने जी उठे का क्या तजर्बा करना, अभी तक सिर्फ एक आखिरी नुकता है यार, जी उठने ये जो तगड़ा है ना इसकी हमारी ट्रेनिंग हो गई है। स्कूले गया उन्हें आख्या जी वड्डे दी इज्जत करो, उत्थे गया जी वड्डे दी इज्जत करो, त्रीजे दी घरों भी वड्डे दी इज्जत करो, जेड़ा तगड़ा होवे ओदी इज्जत करी दी, जेड़ा वड्डा होवे ओदी इज्जत करी दी, जेड़ा हर पासों तगड़ा होवे ओदी इज्जत करी। अजे सारी ट्रेनिंग भी आ गई, सानू पता है जिस वेले वेखिए ना किसी नू तगड़िया ते फटाफट जी 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 ऐसे करते हैं जी जी जी, क्योंकि साडी बेहतरीन ट्रेनिंग हो गई है तगड़े नु किवें टीसी करने। हाँ जी ऐसे करते हैं, ये आ गया। सही बात है, तगड़े के साथ सलूक करना में आ गया। और जब माड़ा देखते हो तो मार क्यों जाते हो, उस वक्त भी उससे हुनर सीखो कि कमजोर के साथ कैसे सलूक किया जाता है, उससे हुनर सीखो, उससे सीखो कि कमजोर के साथ सलूक कैसे किया जाए। जब ये हुनर आ गया तो जी उठा तुम्हारे रास्ते में है, जी उठा तुम्हारी राह में है, वो तुम्हारे रास्ते, वो कभी भी तुम्हारे लिए नाश्ता भी तैयार कर सकता है। लेकिन काश तुम्हें कमजोर में देखना आ जाए, फिर सच्ची बात है मिस्टेक नहीं करो, फिर मिस्टेक नहीं करो, फिर तुम्हारे पास है, फिर वो हमारे पास है। इसलिए देखिए ये उसके पाकलाम में और उसके ये जो उसके जितने नाम लेवा इधर बैठे हुए, अगर मुझे इनमें नजर नहीं आता तो फिर कहाँ नजर आएगा, इनमें नजर नहीं आता तो कहाँ नजर आएगा। इसलिए कमजोर में देखना, हमें फन आ गया तगड़े के साथ कैसे पेश आना है, कमजोर से कैसे पेश आना है ये फन नहीं आया। और सीखना है तो कमजोर के साथ कैसे पेश आना है ये फन सीखना है। ये फन सीखोगे तो जी उठा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। इसीलिए कि उसने कहा जब कभी किसी कमजोर को देखोगे, भूखे नंगे प्यासे को देखोगे तो वो कौन होगा, मैं हूं। भूल नहीं जाना, उसके वजूद को भूल नहीं जाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जी उठा हमारे साथ है, वो जी उठा है और हमें भी जी उठा। देखो हमारे बपतिस्मे का मतलब ये है कि हम उसके साथ मरे और जी उठे, हम वाकई उसके साथ जी उठे। और जी उठने का ये सबूत होगा, पता क्या, या तो प्रो लाइफ बन जाओ या प्रो डेथ बन जाओ, प्रो लाइफ बन जाओ या प्रो डेथ बन जाओ। जी उठे के पीछे हो तो प्रो लाइफ हो गए, फिर लाइफ के लिए तुम्हारा वोट होगा। और अगर उसके साथ नहीं हो जी उठे तो फिर डेथ के लिए तुम्हारा वोट होगा, फिर मौत के माहिर हो जाओगे। किसके? मौत के माहिर, मरन दे माहिर, मारन दे माहिर। या मर जाना होंदा है या मारना होंदा है। आज चलिया तेनू जीना कदों आवेगा, मरना आ गया, मारना आ गया, जीना कब आएगा। उससे सीख जिया कैसे जाता है, उससे सीख जिया कैसे जाता है। उसने जीने का हुनर दिया, जीने का फन दिया, जीने का माहिर है, वो जीने की महारत है उसके पास। उसने यही सिखाया, ए इंसानों आओ मुझे से सीखो कि जिया कैसे जाता है, जिया कैसे जाता है। इसीलिए जीने का फन सीखना हो तो उससे सीख। इसीलिए उसने कहा जिंदगी भी मैं हूं, राह भी मैं हूं और हक भी मैं, राह हक और जिंदगी मैं हूं। इसलिए वही रास्ता है, वही हक है, वही जिंदगी है। और मैं समझता हूं जो जी उठा है मुर्दों में से, उसने हमारे लिए ये कसरत कर दिया है, राह को भी, हक को भी और जिंदगी को भी। इसलिए मैं इस शेर के साथ यहाँ बंद किए देता हूँ। खुदा आपको बरकत दे और खास तौर पर जी उठा मसीह आपको अपना दर्शन दे, अपना दीदार दे, ताकि आप अपनी जिंदगी में कन्विक्शन के साथ, पूरे यकीन के साथ कह सको हाँ हम उसके गवाह हैं जिसको देखा है, हम उसके गवाह हैं जिसको देखा है, वरना हमारी गवाही झूठी रहेगी। इसलिए हमने सही, मैं पता क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है, रियली देखा है। इसीलिए पौलुस कहता था अग्रिप्पा बादशाह को, अग्रिप्पा एक गल किसी कोने च नहीं हुई, ये यरूशलेम में हुई है। मैं कैसे ना बताऊं कि वो जी उठा है, मैं कैसे ना, हालांकि देखा वो नहीं था, खुद देखा बाद में। वो कहता है मैं कैसे ना बताऊं, एक गल किसी कोने च नहीं हुई। उसका जुमला बहुत प्यारा है, कहते हैं अग्रिप्पा एक गल किसी नुक्कर च नहीं हुई, यरूशलेम शहर च हुई है और वो मुर्दों में से जी उठा।
ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਹੋਏ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਲਈਆਂ। ਕਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪੁਣ ਲਈਆਂ। ਕਈ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ। ਅਸਦ ਸੁੱਤਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ।